بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نشاندہی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اسلام آباد سبزی منڈی میں، جہاں مین انٹرس کا گیٹ ہے۔ وہاں پر مختلف یہ تقریباً 8 مین انٹرس ہے جو سبزی منڈی میں داخلی راستے ان ہوتے ہیں، اور ان انٹرس کے دوران جو گاڑیاں لوڈڈ اور ان لوڈڈ گاڑیاں جو انٹر کے لیے ہوتی ہیں، وہاں پر موجود جو چوکیاں لگی گئی ہیں، وہاں پر جو ٹھیکیدار تعینات ہے، اس نے اپنی طرف سے جو بندے یہاں ہائر کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک پرچی دی جاتی ہے جو بھی گاڑی انٹر ہوتی ہے، گاڑی کار پارکنگ کی، اس میں جو ان لوڈڈ گاڑی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کا کیا ریٹ ہے اور ان کی طرف سے کیا ریٹ کیا گیا ہے، آیا کہ وہ پرچی کتنے ٹائم کے لیے مختص کی گئی ہے، آیا کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے، یا پر ٹرپ اگر گاڑی ایک بار انٹر ہو کے باہر جاتی ہے، آیا کہ وہ گاڑی دوبارہ اگر وہ واپس یہاں سبزی منڈی میں اپنا مال لوڈ کرنے یا ان لوڈ کے لیے آتی ہے، تو اس بارے میں گورنمنٹ کے کیا احکامات ہیں، اور یہاں جو ٹھیکیدار کی طرف سے بندے مختص کیے گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا بھی ہم موقف ان کا جانیں گے کہ آیا کہ وہ پر گاڑی، چھوٹی گاڑی اور بڑی گاڑی کا کیا ریٹ ہے اور کیا پرچی ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ جی ڈیلی آتے ہیں۔ یہ ڈیلی آپ کو یہ پرچی ملتی ہے؟ ڈیلی ملتی ہے۔ کتنے پیسے آپ دیتے ہیں؟ 40 روپے۔ اگر آپ یہاں سے ابھی مال لوڈ کرنے آئے ہیں یا ان لوڈ کرنے آئے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ آپ یہ پرچی لیتے ہیں؟ پھر نہیں، دوبارہ نہیں لیتے ہیں۔ کتنے تو میں جاتا ہوں پھر واپس نہیں آتا۔ واپس نہیں آتے؟ نہیں۔ اگر ویسے کبھی چانس لگا ہو؟ ابھی چانس نہیں لگا۔ اچھا، لگا ہی نہیں؟ نہیں لگا۔ تو یہ کتنے پیسے دیے ابھی آپ نے؟ ابھی 40 روپے۔ گاڑی آپ کی لوڈ ہے یا ان لوڈ؟ تو 50 لیتے ہیں، اگر خالی ہو تو 40 لیتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی یہ گاڑی خالی تھی، اگر لوڈ ہو تو چھوٹی گاڑی کا 50 روپے یہاں دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ اپنا اور بھی یہاں پر گاڑی ہے، یہ بڑی گاڑی ہے، ایک شاہزور گاڑی ہے، اس پہ بھی مال لوڈ ہوا ہے، ان سے پتہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آپ ڈیلی یہاں سبزی منڈی انٹری کرتے ہیں؟ نہیں، ڈیلی نہیں، کبھی کبھی 2-3 دن کے بعد آتے ہیں۔ اچھا، تو کتنی دیر یہاں اندر ٹھہرتے ہیں آپ؟ ہمارا تو تقریباً ٹائم نہیں لگتا ہے، گاڑی خالی کرنے کا ٹائم لگتا ہے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ۔ تو ابھی یہ لوڈڈ ہے، آپ نے کتنے پیسے دیے؟ ادھر 60 روپیہ دیا ہے پرچی کا۔ 60 روپے دیے آپ؟ جی جی۔ تو آپ کو کیا اندر پارکنگ کی سہولیات پوری ملتی ہیں؟ جہاں گاڑی آپ پارک کرتے ہیں جگہ وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ تو سارا کچا روڈ ہے نا، سامنے یہ والے مین پکا ہے اور بقایا سارا کچا ہے۔ ہم تو کچے پہ مال اتارتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، پارکنگ کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے جیسا دیکھا ہے کہ پارکنگ کی وہ سہولیات یہاں پر صحیح طرح جس طرح گورنمنٹ نے یہاں مختص کی تھی، وہ سہولیات یہاں پر نہیں ہیں۔ مزید ابھی یہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی کئی کار پارکنگ والے بھی ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ حضرات کھڑے ہیں، یہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کی طرف سے یہ بندہ مختص کیے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھیا آپ؟ ناصر۔ اچھا ناصر بھائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مختلف کمپلینس بھی آئی ہوئی ہیں کہ بڑی گاڑی کا، آپ جو لوڈڈ گاڑی ہے اس کا گورنمنٹ کی طرف سے 140 روپے ریٹ ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ 140۔ لیکن آپ وہ 300 روپے آپ ان سے چارج کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو سہولیات بھی اندر آپ نے پرووائڈ نہیں کی ہوئی ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جب ڈرائیوروں کا یہ کہنا ہے کہ گاڑی ہم لے کے آتے ہیں اندر تو وہ پھنس جاتی ہے، بارش ہلکی سی ہو تو ہمیں تو وہ کرین منگانا پڑتا ہے، وہ اپنے پاس سے خرچہ کرتے ہیں، اور اگر باہر چلے جاتے ہیں دوبارہ اگر ان ہوتے ہیں تو ہم نئی پرچی لیتے ہیں۔ یہ آپ بتا دیں اگر کوئی ڈرائیور بولے کہ یہ ہم نے خرچہ کیا ہوا ہے۔ جی میرے پاس بالکل، میرے پاس باقاعدہ پروف ہے، ثبوت کے ساتھ میں کروں۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ جو گراؤنڈ ہے نا، وہ ان کا یہ آئی سی ٹی والوں کا، سامنے سے آئی سی ٹی والوں کا، ٹھیک ہے؟ وہ گراؤنڈ تو آئی سی ٹی مطلب والوں وہ کا کلیئر انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ کلیئر انہوں نے کرنا۔ راستہ جو ہے نا وہ تو پھر یہ سیڑھیاں آپ کی کتنی پکٹ کتنی آپ نے لگائی ہیں، چوکیاں جو لگی ہوئی ہیں ٹھیکیدار کی طرف سے؟ 6 پکٹ ہیں ٹوٹل؟ جی۔ اچھا، تو خالی اور ٹائمنگ گاڑی اگر ایک انٹر ہوتی ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے پرچی آپ؟ گاڑی جو انٹری ہے نا وہ ہر پھیرے کی انٹری ہے، ہر پھیرے کی ہر انٹری ہے، پھیرے کی۔ جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ایسی کوئی احکامات نہیں جاری؟ ان کی سیڑھیے کی طرف سے جو جس طرح جاری ہوئے اسی طرح ہی ہے۔ اچھا، ویسے
160 रुपये लोड गाड़ी की पर्ची है। गाड़ी आपके पास कौन सी है? छोटी मजदा है, 3500 मजदा है। हाँ जी, पहले उसका अच्छा, 500 से पहले देते। यहाँ जो आप गाड़ी अंदर लेके आते हो, पार्क करने की कोई सहूलत यहाँ मौजूद है? यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे तो सब वही सिस्टम है बराबर। बस कोई बैठ के ले जाते हैं, गाड़ियों के डीजल निकल जाते हैं, कोई नहीं पूछता है। 50 रुपया गाड़ी का लेते हैं, 100 रुपया खाली गाड़ी की पर्ची लेते हैं। तो अगर आप गाड़ी अंदर लेके आते हैं, लोडिंग या अनलोडिंग आप करते हैं, जब बाहर आप जाते हैं, दोबारा आते हैं, तो दोबारा पर्ची आपको लेनी पड़ती है? नहीं, मसलन एक बार अंदर एंट्री हुई है, वो फिर बाहर उधर से इधर से एंट्री हो गई है, इधर से वापस टर्न करके वहाँ से निकल गए, वहाँ से फिर एंटर हो गए, तो फिर दोबारा पर्ची है, फिर दोबारा 100 रुपये की पर्ची। जी नाज़रीन, ये देखा आपने कि अगर एक बार एंट्री हो जाती है, तो अगर ये आउट गेट होते हैं, दोबारा इन होते हैं, तो वो दोबारा इनसे पर्ची लेनी पड़ती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो पर्ची इनको प्रोवाइड की गई है, उसका टाइम 24 घंटे का है, लेकिन उसके बावजूद इनसे काफ़ी बड़ी ज़्यादती हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप ड्राइवर हैं? जी ड्राइवर हैं जी, मज़दे के। मज़दा रखा हुआ है आपने? जी जी ड्राइवर। डेली आप यहाँ इधर हमारा लोकल काम है यहाँ पे जी, अच्छा, लोकल काम करते हैं इधर उधर। तो जो यहाँ से जो गवर्नमेंट ने अंदर पार्किंग दी हुई है, उसका निज़ाम कैसा है? कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, बस ये अफरा तफरी वाला काम है, बस सही निज़ाम नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, पर्ची का जो इन्होंने रेट रखा हुआ है, आया कि वो उतने पैसे लेते हैं या गाड़ी लोड हुई हो तो पैसे ज़्यादा नहीं लेते नहीं, हर चक्कर में अंदर जाओ 10 दफ़ा जाओ, 10 दफ़ा पर्ची है। हैं? अच्छा, जी हाँ। तो चलान वगैरह अभी कहते हैं कि चलान, आपका भी चलान हुआ? हाँ चालान हुआ है, 5000 का चालान हुआ है। इधर आल्टी सेक्रेटरी का एक गुलशहर नाम बंदा है, वो आता है चालान करता है गाड़ियों के। आरटी सेक्रेटरी का गुलशेर नाम का कोई जी जी। किस मद में वो चलान करते मेरा 29/11 को चालान हुआ है 5000 का, मैंने जुर्माना भरा है, दोबारा आया है, कागज़ गाड़ी के ले गए, और 2 महीने के बाद मुझे लाइसेंस दिया है 2000 रुपये लेके। हैं? तो क्या डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी या कोई आपने नहीं, सारे कागज़ पूरे हैं, बस इधर ऐसे ही घुमाता रहता है गाड़ी, सब ड्राइवरों को पता है जी, सबके साथ ये काम हुआ है, मेरे एक के साथ नहीं हुआ है। जी हाँ जी, ये सब बंदों का चालान। भी ड्राइवर है? जी जी, मैं भी ड्राइवर हूँ। आपके साथ भी यही? हमारे साथ भी यही होता रहता है। आज भी गाड़ियों की हवा निकली हुई है, सीडीए वाले भी हवा निकाल लेते हैं, कच्चे में गाड़ी खड़ी होती है। हम लोग गरीब लोग हैं, तो बाहर खड़े हो गए, कोई सवारी आ जाती है, सवारी पकड़ लेते हैं लोकल, तो चक्कर लगा। अच्छा, जो एरिया बाहर सीडीए वालों का एरिया है, उधर भी उन्होंने कोई फीस रखी हुई है या वहाँ गाड़ियाँ ऐसी? नहीं, फीस नहीं है, वैसे ही खड़ी होती है, सीडीए वाले वैसे ही खड़ी करने देते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं, हवा निकाल देते हैं गाड़ियाँ। आज भी गाड़ी की हवा निकली हुई है, अभी खड़ी है बाहर। क्राल चौक अंदर मोहल्ले में जब एंटर होते हैं ना, वो गली में पर्ची देनी पड़ती है। नहीं, यहाँ सब्जी मंडी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो मंडी में जो एंट्री होती है उसकी पर्ची तो मतलब कि बाहर से देते हैं, अंदर चौकीदार को भी देनी पड़ती है। हाँ, चौकीदारी ज़्यादा होती है। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा है, ये आरटी सेक्रेटरी का कोई बंदा गुलशेर नाम का, जो डेली इन लोगों का, जो गरीब लोग हैं, जो अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए अपने रिस्क की तलाश में ये लोग यहाँ अपनी मजदूरी के लिए आते हैं, उनसे इतनी बड़ी ज़्यादती और इतना बड़ा भुगतान आया कि जो मौजूदा हुकूमत है इसका कोई इकदाम उठाएगी या नहीं उठाएगी, इस बारे में मज़ीद हम जानने के लिए यहाँ के डिप्टी कमिश्नर असनाद शफकात साहब के पास भी जाएंगे, उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे कि आया कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, और इनके पास जो उनकी दी हुई हदायत है, जो उनकी तरफ से हुक्मनामा जो जारी किया गया है कि ये पर्ची का जो रेट एक मुख्तसस किया गया है, उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे इन गरीब लोगों से ज़्यादती हो रही है और ये यहाँ ज़्यादती का शिकार बन रहे हैं। यहाँ की जो इनके मुताबिक, यहाँ के लोगों के मुताबिक, जो ड्राइवर हज़रात हैं उनके कहने के मुताबिक यहाँ जो अंदर पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है जहाँ ये अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। अगर बाहर खड़ी करते हैं तो सीडीए वगैरह इनका एक्स्ट्रा से चालान कर देते हैं, और यहाँ ना कोई पानी का कोई सीवरेज का निज़ाम है और ना कोई पीने का फ़िल्ट्रेशन पानी का भी यहाँ कोई ऐसा कोई मौसर इकदाम देखने में आया है। जी, हम ड्राइविंग भी करते हैं, दूसरा हमें सीडीए वाले इतना तंग करते हैं, जिधर भी गाड़ी खड़ी करो उधर भाई पुलिस वाला भी आ जाता है और साथ में सीडीए वाला भी आ जाता है, भैया गाड़ियाँ नहीं खड़ा करो, समझिए। ये तो हम काफ़ी मुश्किलात है। तो आप उन्हें कहें ना कि हम गाड़ी पर्ची लेके आए हैं, अंदर पार्किंग है, और फिर कहाँ करें हम? छोड़ते नहीं है सर, गाड़ी का लाने का ज़रूरत ही नहीं है, बार बार निकाल लेते हैं, कहने जी निकालो गाड़ी, कोई ज़रूरत नहीं है कि साइड पर खड़ा करो। लोगों का माल पड़ा होता है, लोगों का नुकसान हो जाता है, हमें तो किराया ले लेते, फिर भी तकलीफ तो होता है ना। एक इंसान का ख्याल न रखो तो इन लोगों को, हमें हुकूमत से मुतालबा है कि भाई हमारे साथ ताउन करे, समझिए। हम माल लेके आए और हमें जलील कर रहा है। बड़ी लंबी गाड़ी आती है,
मंडी के अंदर शू करके गुजर जाती है, उसको कोई हाथ भी नहीं देता है। ठीक है, एक गरीब टैक्सी वाला गुजरता है तो उसको कहते हैं ओए इधर रुक जाओ, इधर पर्ची दे के जाओ। अगर बनता है उस गाड़ी वाले को, उसको कोई फर्क पड़ता है? वो कहते हैं कि हम उस बड़ी जो गाड़ी है 22 व्हीलर आता है तो उससे 200 रुपये बड़ी की गाड़ी की वो बात नहीं कर रहा हूँ, जो इधर से कारें गुजरती है वो बात करता हूँ। 10 व्हीलर का तो जो है ना, ये जो है ना दुश्मन है, 10 व्हीलर को किधर जाने देते हैं? समझ आ गई ना? तो उन लोगों का हक बनता है कि पर्ची के पैसे दे। ठीक है, गरीब टैक्सी वाला का तो हक नहीं बनता है। तो टैक्सी वाले से रोक के पर्ची ले लेते हैं, जो बड़ी गाड़ी हो इस तरह गुजर जाती है। जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि जो असर रसूख बंदा है उनसे कोई पर्ची नहीं ली जाती है और जो गरीब बंदा है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। इसका कोई ना कोई हुकूमत अजाला। तरफ से जो आपको ये ठेका मिला है, एक तो सुनने में ये आया कि ये ठेका ख़त्म हो चुका था, 6 महीने हो चुके हैं, अबव हो चुके हैं, 6 महीने एक्सटेंड आप इसे यूज़ कर रहे हैं जो इनलीगल है। और दूसरा, काफ़ी ड्राइवर हज़रात ने कंप्लेन की है कि हम एक बार इंटर होते हैं तो पर्ची का जो रेट है गवर्नमेंट की तरफ से वो 140 रुपये लोडेड गाड़ी का, तो हमसे ये 300 रुपया लेते हैं, 250 रुपया लेते हैं, 200 मुख्तलिफ उनका कहना है। उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो हदायत थी 24 आवर्स के लिए वो पर्ची अलाउ करती है एक ड्राइवर को, क्या ऐसा ही है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमको जो हदायत है वो ये है कि हर पर ट्रिप हमारी हर गाड़ी का पर्ची है। बकाया जो शेड्यूल के रेट चल रहे हैं, मार्केट कमेटी चेयरमैन साहब ने जो रेट हमको दिए उसी रेट के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक हम लोग पर्चियाँ ले रहे हैं। जो है ना, कोई ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं कर रहे। ठेका ये हमारा अदालत में जो है ना केस लगा हुआ है, जब फैसला हो जाए, हमारे कुछ इशू थे वो चल रहे हैं। अदालत जब जो भी फैसला होता है अदालत का जो है ना, उस पर फैसले के बाद जो होएगा नोटिफिकेशन होएगा, वो जो है बकाया हम शेड्यूल का पर्ची ले रहे हैं और पर ट्रिप हमारी पर्ची है और हर गाड़ी का जो है पर्ची। जो ओवर चार्जिंग है सर, उस पर कुछ आप बताएंगे कि या लड़के आपके करते हैं या कोई इसमें कोई सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है और सारी शेड्यूल की पर्चियाँ ले रहे हैं। इस्लामाबाद दारुल-खिलाफे के अंदर रह के 1 रुपया ओवर चार्जिंग किस तरह कर सकते हैं? आप बिल्कुल हमारी पर्चियाँ चेक कर लें, गेट पे हर 6 गेट हैं, हर गेट पे बुकें मौजूद हैं, तस्वीरें ले लें, देख लें हमारा शेड्यूल, इनसे चेयरमैन मार्केट कमेटी से लेके चेक कर लें। जी नाज़रीन, आपने इनका मौक़िफ़ जाना है, देखा है, आया कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें है कि आया जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें पर्ची प्रोवाइड की गई थी 24 आवर के लिए, लेकिन यहाँ इनका ये कहना है कि हमें जो गवर्नमेंट ने हदायत दी हैं पर ट्रिप हम वो चार्ज करते हैं, कोई ओवर चार्जिंग नहीं है। कितने सर पैसे आप लेते हैं जो ड्राइवर हज़रात यहाँ आते हैं? भाईजान, ये अगर लोडिंग गाड़ी होगी तो उसका 200 रुपये 6 व्हीलर, खाली होगी तो 140। लेकिन ड्राइवरों को तो ये कहना है कि हमसे वो 300 रुपये लेते हैं, अगर लोडिंग हो, खाली हो 200 रुपये वो लेते हैं। फ्रूट होगा तो फ्रूट का 270 रुपये बनता है, सब्जी होगी उसका 200 रुपये बनता है, जबकि सरकारी रेट तो 140 है। सरकारी रेट खाली गाड़ी का 140 है। लोडेड कितनी है? लोडेड सब्जी होगी 200 रुपये, फ्रूट होगा 270 6 व्हीलर का। 10 व्हीलर जो है उसका भी इसी तरह है, अगर उसमें फ्रूट होगा तो उसका 500 रुपये है, अगर सब्जी होगी 300 रुपये। लेकिन अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये तो CDA की जगह है, CDA की जगह है, ये आपकी है? ये नहीं, ये इस बारे में खैर मुझे तो इतना इल्म नहीं है कि ये CDA की है या किसकी है, लेकिन ये है कि हम लोग तो ख़ुद मुलाज़म हैं और ये आज से तो नहीं है ना, ये तो हमारा तकरीबन 2 साल हो गए हैं। अच्छा, वो तो आपका तो जो आपका ठेकेदार था उसका तो ठेका भी ख़त्म हुआ है, 6 महीने एक्सटेंड हो चुके हैं, उसके बावजूद आप गैर कानूनी ये पर्ची काट रहे हो। ये मुझे बताएंगे यहाँ जो मुख्तलिफ ये ज़मीन खोदी गई है, गड़े किए गए इतने बड़े, ये आप लोगों ने की? नहीं, इसके बारे में नहीं इल्म है। आप इधर ही होते हैं, कितने घंटे आपकी ड्यूटी है? 12 घंटे। तो इधर ही होते हैं, आपके सामने ये नहीं हुए? नहीं, ये तो पहले का हुआ है, अभी तो नहीं हुए। ये इसीलिए कि है ना, यहाँ बाहर गाड़ियाँ ना खड़ी हो ताकि अंदर आपकी पार्किंग में आपके पैसे बने। 2-3 जगह से जो है ना ड्राइवरों ने रास्ते बना के गाड़ियाँ अंदर लेके जाते थे, तो इस वजह से ज़ाहिर है फिर वो रास्ता बंद किया होगा उन्होंने।
جی ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا کہ غیر قانونی طریقے سے ایک تو ان کا کانٹریکٹ بھی ختم ہو چکا ہے، 6 مہینے ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ہی اپنی بتا خوری کہہ لیں کہ اس کے باوجود ہی اپنی منمانی کر رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حکام بالا کے پاس بھی ہم جائیں گے، ان سے ان کا موقف جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔